is wireless communication? To transmit and receive voice or data using electromagnetic waves in free space is called as a wireless communication, right? What is communication? Communication is to transmit or receive voice and data, है ना? Communication is to transmit and receive voice and data is communication, and the wireless communication is to transmit and receive voice and data using electromagnetic wave in free space, because there is no need to connect your transmitter and receiver with any physical medium, right? So basically, transmitter and receiver can be connected together either wirelessly or wired. If you are connected it wired, it means you have to use either coaxial cable or optical fiber or any other wired media, physical media, right? But in wireless communication, there is no requirement of any physical medium to connect transmitter and receiver. So here data is transmitted wirelessly. Wirelessly means you just have to transmit your data in free space. Right? And how the data is propagating in free space? So the electrical signal must be converted into some electromagnetic wave. How electrical signal is converted into electromagnetic wave? It is converted into electromagnetic wave with the help of antenna. With the help of antenna. With the help of antenna, electrical signal is converted into electromagnetic wave in wireless communication. Right? Next thing is the whatever information is sent from transmitter to receiver is carried over a well-defined frequency band, which is called as a channel. So basically there are two bandwidths. One is your signal bandwidth and second one is your channel bandwidth. Signal bandwidth depends upon the frequency spectrum of your baseband signal, right? And channel bandwidth depends upon that how what is your carrier frequency. So means before modulation, the required bandwidth for the signal is called as your signal bandwidth, and when we do modulation, then it will be defined the value of the channel bandwidth. So in general, what is the difference between data and voice? Means whatever we are communicating, हम लोग जो बात कर रहे हैं ये वॉइस है, और इसको ट्रांसफर करने के लिए वॉइस को हम माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं. इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, उसको फिर एंटीना से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कन्वर्ट करते हैं, देन इट विल बी ट्रांसमिटेड इनटू द फ्री स्पेस. एंड डेटा इज समथिंग की जैसे आप इंटरनेट में आप लाइव मैच देख रहे हैं या कोई शेयर मार्केट के स्टॉक के क्या रेट्स चल रहे हैं, या कोई मूवी देख रहे हो, या आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ डेटा. इनिशियली जब कम्युनिकेशन था तब उस केस में केवल हम बात करते थे, और बात करने के लिए वॉइस को ट्रांसमिट करने के लिए केवल 4 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती थी. और आज के समय में वॉइस से ज़्यादा हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, राइट? किसी से बात करनी होती है तो व्हाट्सएप पे चैट कर देते हैं या अपना वीडियो अपलोड कर देते हैं, लाइक दिस. तो हम वॉइस से ज़्यादा डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, और डेटा ट्रांसमिट करने के लिए हमें ज़्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है. केवल वॉइस ट्रांसफर करने के लिए 4 किलोहर्ट्ज़ बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर यूजर को. तो इन जनरल जो डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं उस डेटा की क्या सिग्नल बैंडविड्थ है, और जब उसको हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो वायरलेस चैनल में उसको ट्रांसफर करने के लिए कितनी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी चैनल बैंडविड्थ है, राइट? तो जनरली इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर में ट्रांसफर करने के लिए एक पहले से वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी बैंड हमको पता होता है, और वो फ्रीक्वेंसी बैंड ही हमारा चैनल कहलाता है.
और वो चैनल की जो बैंडविड्थ है उस पर ही डिपेंड करता है कि मेरा डेटा रेट क्या होगा, यानी कि कैपेसिटी क्या होगी। तो इन जनरल बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है मेरी कैपेसिटी क्या होगी। तो अगर आपके पास चैनल बैंडविड्थ ज़्यादा अवेलेबल है, इफ़ यू हैव मोर channel bandwidth, it means there will be more data rate is supported by that particular channel, right? तो जैसे कि अगर सपोज दो पर्टिकुलर चैनल आपके पास हो, एक 1 मेगाहर्ट्ज का है, एक 10 मेगाहर्ट्ज का है, तो ऑब्वियसली अगर आप 10 मेगाहर्ट्ज के चैनल के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करोगे तो आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर ऑफ बिट्स को पर सेकेंड में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और इन जनरल एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल कम्युनिकेशन को देखें तो पता नहीं कितने लोग उस समय एट अ टाइम अपने कॉल कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। यूज़ वही स्पेक्ट्रम हो रहा है, यूज़ उसी फ्रिक्वेंसी बैंड को हम लोग कर रहे हैं जो डेडिकेटेड है एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो डेफिनेटली जो टोटल बैंडविड्थ है उसको हम डिफरेंट सब बैंड में डिवाइड करेंगे और एक एक सब बैंड में एक एक यूज़र अपना डेटा अगर ट्रांसफ़र करता है तो उसे हम FDMA कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। तो इन जनरल जितने चैनल्स हैं उन सब में आपकी इंफॉर्मेशन पैरेलल और इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट होती है, एक साथ होती है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इन जनरल व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन? टू ट्रांसमिट एंड रिसीव वॉइस एज वेल एज डेटा in free space using electromagnetic wave is called as wireless communication. Always the information, whatever the information, it is voice or data or any type of video, this is combinedly called as information. So whatever is the information sent from transmitter to receiver is the carrier, is always the carrier, because we use a modulation technique. So what we are going to transmit, just for example, if it is an amplitude modulated signal, so it means there is modulating signal, one carrier signal. What we are going to transmit? We always transmit carrier. We always transmit carrier. We are not going to transmit our modulating signal, right? Some frequency of carrier wave is changes in accordance with the modulating signal characteristic. Just for example, in amplitude modulation case, the amplitude of carrier signal is changes in accordance with the amplitude of modulating signal, right? In frequency modulation, the frequency of carrier wave is changes in accordance with the amplitude of modulating signal. In phase modulation, the phase of carrier signal is changes in accordance with the amplitude of modulating signal. So basically what we are going to transmit, we are going to transmit our carrier, but one particular characteristic of carrier will be changes according to the some characteristic of modulating signal. So we are always going to transmit our carrier to transmit the information from transmitter to receiver, right? And that information which is sent from transmitter to receiver is always the carrier, which is well defined frequency band, right? For example, if you are using frequency modulation carrier is 1 megahertz. There is a deviation in frequency from 100 kilohertz, right? So it means the lower frequency will be 1 megahertz minus 100 kilohertz, and the upper frequency will be 1 megahertz plus 100 kilohertz, because the maximum deviation is 100 kilohertz. So it may be on both the sides. So what is the bandwidth at that time? That is 100 minus 1 megahertz minus 100 kilohertz to 1 megahertz plus 100 kilohertz. So what is the bandwidth basically? That will be 100 1 megahertz minus 100, 1 megahertz plus 100. So the bandwidth will be 200 kilohertz. But what will be the carrier frequency? That will be 1 megahertz at that time. So it is very well defined. What is the lower frequency, what is the upper frequency, what is the value of the carrier frequency. So what is the channel bandwidth at that time? So basically the information is always transmitted via a carrier, and it is always a well defined frequency band, that is 1 megahertz minus 100 kilohertz to 1 megahertz plus 100 kilohertz, and that will be called as a fixed frequency bandwidth. And the capacity depends upon this bandwidth. The formula is C is equal to 2B log to the base of 2, 1 plus signal to noise ratio, right? So capacity is directly proportional to the bandwidth.
So if bandwidth is more, it means capacity is equal to capacity is more. What is capacity? What is the maximum data rate that will be called as a capacity? Clear? Capacity is directly proportional to bandwidth, right? If you increase your bandwidth, it means capacity will also increase. And the data rate, the maximum capacity, whatever will be the maximum capacity, it will give you the maximum data rate, right? So there is only two requirement in communication. One is maximum data rate is required. हम क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकें, यानी डेटा रेट ज़्यादा होना चाहिए. सेकेंडली, बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम हो, ताकि जो हमको फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ है हर एक सर्विस प्रोवाइडर को, जैसे एयरटेल है, जियो है, या जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन सबको ट्राई के थ्रू जो स्पेक्ट्रम का वो होता है ना, क्या स्पेक्ट्रम में एलोकेट कराते हैं, तो वो स्पेक्ट्रम का जो एलोकेशन हुआ है वो हर एक सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक फिक्स्ड है. हर एक सर्विस प्रोवाइडर के पास एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंड है. आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकें. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज टू प्रोवाइड सर्विस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर. एंड द सेकेंड थिंग इज कि द डेटा रेट मस्ट बी हाई, स्पीड मस्ट बी हाई. मतलब एक क्लिक हम करें और मेरा वीडियो फटाक से डाउनलोड हो जाए. तो इन जनरल यूजर की जो आज की डिमांड है वो ये है हाई स्पीड, राइट? सर्विस प्रोवाइडर क्या चाहेगा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर को हम सर्विस दे सकें, और वो सर्विस ऐसी हो कि वो बहुत अच्छी हो, नहीं तो यूजर किसी दूसरे के पास दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को ज्वाइन कर लेगा. तो इट मीन्स कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि डेटा रेट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो और बैंडविड्थ कितनी कम से कम एक यूजर में दे करके काम चल जाए, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को हम अपने फ्रीक्वेंसी बैंड में एलोकेट कर सकें. क्या कोई ऐसी मल्टीपल एक्सेस की टेक्निक हो जिसमें हम लिमिटेड फ्रीक्वेंसी बैंड को मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स के थ्रू एक्सेस करा सकें, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स मिनिमम बैंडविड्थ में अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकें और वो डेटा रेट मैक्सिमम हो, राइट? तो हालांकि डेटा रेट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट टू बैंडविड्थ, मीन्स अगर बैंडविड्थ ज़्यादा है तो डेटा रेट ज़्यादा होगा. पर बैंडविड्थ ज़्यादा करना इन जनरल ये हम अपने नंबर ऑफ यूजर्स को कम कर रहे हैं, तो हमें मल्टीपल एक्सेस की कोई एक ऐसी टेक्निक लगानी होगी जिसके थ्रू आप मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में डेटा ट्रांसफर करा सके पैरेलली और इंडिपेंडेंटली. पैरेलली मीन्स एक साथ डेटा अपना ट्रांसफर करें, और इंडिपेंडेंटली मतलब एक दूसरे के ऊपर फर्क ना पड़े कि अगर वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो हम रुक जाए. जैसे फॉर एग्जांपल 10 यूजर, ठीक है, और एक चैनल है मेरे पास, तो एक टेक्निक तो ये है कि एक यूजर से कहें आप अपना डेटा ट्रांसफर कर लो पूरी बैंडविड्थ में, राइट? देन 2 सेकंड के बाद आप दूसरा यूजर ट्रांसफर करेगा, 3 सेकंड, 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड के बाद तीसरा यूजर ट्रांसफर करेगा. इससे क्या हो रहा है कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं हुआ है ना. जब उसका मतलब जब उसका नंबर आएगा उसको वेट करना पड़ेगा. अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते चले जाएंगे तो वो वेटिंग पीरियड फॉर हर यूजर के लिए ज़्यादा हो जाएगा, वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो जाएगा. और जबकि सर्विस प्रोवाइडर क्या चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर को सर्विस दें. तो ये TDMA है, टाइम डिवीजन, कि हम मल्टीपल एक्सेस मीन्स व्हेन मोर देन वन यूजर शेयर द सेम चैनल. When more than one user share the same channel, it will be called as a multiple access, right? If it is time division, it means the channel is divided, the channel is accessed by the number of users per unit time, कि आपको कुछ समय के लिए मिलेगा. तो इन जनरल आप पूरे टाइम पे डेटा ट्रांसफर अपना नहीं कर सकते, वो टाइम डिवीजन में हो जाएगा. तो इट मीन्स कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हम लोगों को वायरलेस कम्युनिकेशन, ये पहले चीज़ ये याद रखिए, बहुत सिंपल. अगर हम इसको समराइज करें तो नंबर 1, डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर में ट्रांसमिट और रिसीव करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में ओपन स्पेस में, ये हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन कहलाता है. देन ऑलवेज द इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होगी वो एक वेल डिफाइंड फ्रीक्वेंसी बैंड में होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज अ चैनल. और वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बैंड ही उसकी कैपेसिटी को डिसाइड करेगा. कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ एंड maximum bit rate is equal to capacity. Whatever will be the capacity of the channel, that will be the maximum data rate which is supported by that particular channel. Clear?
Now different channels can be used to transmit information in parallel and independently. Clear? What is wireless communication? Any doubt? किसी को? No, ma'am. Okay. The next thing is कि, for example, here we are going to take a picture of a FDMA technique, frequency division multiple axis. Let it be हमारे पास 120 किलोहर्ट्ज का, we have a spectrum of 120 kilohertz, right? And transmitter is station A, transmitter is station B, receiver is station B, and we are going to divide our entire frequency spectrum into 3 sub channels. As you can see in this figure, that entire 120 kilohertz spectrum is divided into 3 sub channels, sub part, that is called as a channel. Channel 1, channel 2 and channel 3. What is the bandwidth of each channel? It is 40 kilohertz. So there are 3 channels overall, because we have a spectrum of 120 kilohertz and the channel occupies a bandwidth of 40 kilohertz. So it means every channel has a 40 kilohertz bandwidth, right? Channel 1, 2 and 3. And the range of the frequency is, suppose B say B plus 40, then B plus 40 to B plus 40, 80 and B plus 80 to B plus 120. Why 40 kilohertz? Because this is the requirement for transmission of voice. For only the transmission of voice we require 40 kilohertz bandwidth, right? So 120 kilohertz bandwidth में हम 3 channels को occupy कर सकते हैं. Now the next thing is कि अब अगर ऐसे समझिए कि हमने 40 किलोहर्ट्ज के 3 किए, तो यहाँ पर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो दोनों चैनल में कॉमन है ना. जैसे B plus 40 is common in between channel 1 and channel 2. B plus 80 is common in between channel 2 and channel 3, right? So overall we can say कि 40 kilohertz bandwidth is in both the channels. So there should be some gap between channel 1 and channel 2, which is called as a guard band. Reason is this, कि every channel behaves as a filter, right? Every channel behaves as a filter depending upon the range of frequency. It may be act as a low pass filter, band pass filter or any other filter. So in general, whenever we draw the frequency response of a filter, तो अगर suppose low pass filter है, ठीक है, तो जो आपका परफेक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो तो 0 से FC बिल्कुल ऐसे आ जाता है ना, 0 to FC बिल्कुल आइडल है. मतलब उसमें 2 ही चीजें हैं, एक आपका पास बैंड और एक स्टॉप बैंड, राइट? बट रियल टाइम सिनेरियो में हम जो मैक्सिमम गेन है उससे 0 आने में कुछ टाइम लगता है. देयर इज नॉट अ सडन ड्रॉप फ्रॉम मैक्सिमम टू 0, देयर विल बी अ सडन टाइम पीरियड, है ना. और ये जो ड्रॉप होता है, इसको अगर हम मैक्सिमम बाई √2 से नीचे ड्रॉप कर दें, तो जो गैप मिलता है फ्रीक्वेंसी का, उसको हम एटीन्यूएशन बैंड कहते हैं. अब इस एटीन्यूएशन बैंड को देखें तो अगर सपोज ये 5 किलोहर्ट्ज का भी एटीन्यूएशन बैंड है, तो ये सीधे ड्रॉप ना होके ये 5 किलोहर्ट्ज आगे जाके ड्रॉप हुआ, राइट? अब ये जो 5 किलोहर्ट्ज का गैप है, ये एक्चुअली दूसरे चैनल में जा रहा है. तो देयर विल बी अ ओवरलैपिंग बिटवीन द डेटा ऑफ चैनल 1 एंड चैनल 2. क्लियर है? जैसे अगर एक सिंपल एक लो पास फिल्टर का हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें, तो आइडल में तो वो एक स्क्वायर शेप में होगा, 0 to FC, सडन ड्रॉप हो गया, 0 हो गया. पर रियल केस में वो कुछ इस तरीके से ड्रॉप होगा और मैक्सिमम से 0 आने में उसको कुछ टाइम लगता है. इसी को अगर हम उतनी देर में फ्रीक्वेंसी देखें कि कितना आगे गया, तो मैक्सिमम बाई √2 से, बिकॉज व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज अ ग्राफ बिटवीन गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी. वाई एक्सिस पे गेन है और एक्स एक्सिस पे आपका फ्रीक्वेंसी होता है. तो अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बाई √2 से नीचे ड्रॉप करें और 0 जब तक वो हो रहा है उसको फ्रीक्वेंसी एक्सिस में मेजर करें, तो वो वैल्यू आपकी एटेन्यूएशन बैंड कहलाती है. तो अगर आप इस तरीके से फ्रीक्वेंसी को हम चैनल्स में डिवाइड कर देंगे, तो देयर विल बी अ ओवरलैपिंग बिटवीन चैनल 1 and 2 एंड द चैनल 2 and 3. इट मीन्स एक का डेटा दूसरे के साथ में कंबाइन हो जाएगा लास्ट में. इसको रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं गार्ड बैंड को. इट मीन्स सपोज अगर 2 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड हम रखते हैं, तो पहले वाले चैनल की फ्रीक्वेंसी होगी B से B plus 39
और दूसरे चैनल की फ्रीक्वेंसी होगी B+41 से B+8। तो जो बीच में गैप हो गया आपका 2 किलोहर्ट्ज का, है ना, 2 किलोहर्ट्ज का जो गैप हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एज अ गार्ड बैंड। तो इसमें हमें दिख रहा है कि चैनल को हमने एक्यूरेट कर दिया, बिल्कुल B+40 दोनों जगह है, पर ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम इस तरीके से चैनल को डिवाइड करेंगे तो दोनों चैनल का डेटा आपस में ओवरलैप कर जाएगा। उस ओवरलैपिंग को रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ 1 किलोहर्ट्ज का हम गैप रोक देते हैं, जिसकी वजह से 2 किलोहर्ट्ज का अपने पास में गैप आ जाएगा, गार्ड बैंड आ जाएगा। ठीक है, 2 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड आ गया, तो उस केस में डेटा की ओवरलैपिंग को रोका जा सकता है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ गार्ड बैंड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ गार्ड बैंड so that there will be no overlapping of data between the two channels. How we are going to decide the value of the guard band? जैसे अभी मैंने आपसे कह दिया कि हम 2 किलोहर्ट्ज का लेंगे, 40 किलोहर्ट्ज में 2 किलोहर्ट्ज का लेंगे, 1 किलोहर्ट्ज इधर और 1 किलोहर्ट्ज उधर, तो 2 किलोहर्ट्ज का गार्ड बैंड हमारा बन जाएगा। Who is going to decide the value of the guard band? It is decided by the roll of roll off factor of filter at the receiver side, right? It will depend on the roll off factor of the filter on the receiver side. तो जो रिसीवर है, रिसीवर का ऑलवेज पहला ब्लॉक मेरा एक बैंड पास फिल्टर होता है। बैंड पास फिल्टर हम लगाते हैं नॉइज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जो डेटा आपने ट्रांसफर किया जब वो रिसीवर पर पहुंचा तो वो जैसा आपने ट्रांसमिट किया था वैसा नहीं पहुंचेगा, राइट। उसमें क्या होगा, डेटा के साथ में नॉइज होगा, डेटा के साथ में आपका इंटरफियरेंस होगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? एनी अनवांटेड स्प्यूरियस सिग्नल जनरेटेड एट द साइड ऑफ द ट्रांसमीटर और रिसीवर इज कॉल्ड एज अ नॉइज, राइट। रिसीवर पे भी जैसे थर्मल नॉइज, शॉर्ट नॉइज, कम्युनिकेशन में हम लोग इसको देख चुके हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिग्नल्स जनरेटेड होते हैं एट द साइड ऑफ द ट्रांसमीटर के हार्डवेयर में या रिसीवर के हार्डवेयर में, या इन बिटवीन कोई ऐसा सिग्नल है जो हमारे उससे नहीं मैच करता है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ नॉइज, राइट। एंड द डेटा ऑफ द अदर यूजर्स इज कॉल्ड एज एन इंटरफियरेंस। द डेटा ऑफ द अदर यूजर्स इज कॉल्ड एज एन इंटरफियरेंस। एक ही स्पेक्ट्रम में एक से ज्यादा लोग डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मेरे लिए मेरा डेटा है, पर दूसरों का डेटा जो है वो मेरे लिए इंटरफियरेंस है। हालांकि वो दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उनका डेटा है, राइट। तो जो हमें रिसीवर पर मिला, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉट एवर बी आई हैव ट्रांसमिटेड प्लस नॉइज प्लस इंटरफियरेंस। और रिसीवर का काम क्या है कि हम उस नॉइज और इंटरफियरेंस से अपने सिग्नल को निकाल के रिकवर कर लें, जान लें कि हमने क्या भेजा था, what is actually transmitted. That is the work of receiver. So first block in every receiver is a band pass filter, because we know I am going to transmit my signal from 1 megahertz minus 100 kilohertz से 1 megahertz plus 100 kilohertz. So I am going to design a filter, right, which will pass the frequency 1 megahertz minus 100 kilohertz से 1 megahertz plus 100 kilohertz तक। उसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हम अपने में से पास करेंगे। बैंड पास फिल्टर लगा दिया है पहला ब्लॉक, तो बाकी कोई भी सिग्नल जो इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं आता उसको रिसीवर ने वहीं पे कट डाउन कर दिया। अब जो इस फ्रीक्वेंसी में आया वो नॉइज और वो इंटरफियरेंस हमको रिमूव करना पड़ेगा, या ये कहने कि उनके होते हुए अपने सिग्नल को रिकवर करना पड़ेगा। दैट इज द वर्किंग ऑफ द रिसीवर इन जनरल। तो बेसिकली जो गार्ड बैंड है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अभी यहाँ पे जो पिक्चर है इसमें गार्ड बैंड 0 है। गार्ड बैंड 0 आइडियल केस में ठीक है, पर रियल सिनेरियो में कोई भी लो पास फिल्टर या कोई भी चैनल आइडियल नहीं है। उसमें आपको एटेन्युएशन बैंड मिलेगा। एटेन्युएशन बैंड की वजह से दोनों चैनल के बीच में ओवरलैपिंग होगी और उस ओवरलैपिंग की वजह से मेरा डेटा आपस में मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, इंटरफियर जुड़ जाएगा। उसको हम कैसे बचाएं? उसके लिए हर चैनल के बीच में हमें एक गार्ड बैंड छोड़ना चाहिए। गार्ड बैंड कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि जो रिसीवर है आपका उस कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम में उसका पहला ब्लॉक जो फिल्टर आप यूज कर रहे हैं उस फिल्टर का रोल ऑफ फैक्टर क्या है। रोल ऑफ फैक्टर डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ द फिल्टर के ऊपर, है ना। रोल ऑफ फैक्टर डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ द फिल्टर के ऊपर।
यानी कि ये जो मैक्सिमम से जीरो होना है, गेन जो मैक्सिमम से जीरो होना है, वो कितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो जाएगा उतना ही कम एटीन्यूएशन बैंड होगा, और जितना कम एटीन्यूएशन बैंड होगा उतना कम गार्ड बैंड रखने से आपका काम चल जाएगा। तो इफ वी इंक्रीज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, हम अच्छा फिल्टर बनाए, डिजाइन किए करें, और ऑर्डर ऑफ द फिल्टर क्या होता है, यही है कि अगर 20 dB पर डिकेड गेन डिक्रीज हो रहा है, गेन 20 dB पर डिकेड डिक्रीज हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर, 40 dB per decade decrease हो रहा है second order filter, and so on. So if we increase the value of the second order filter, it means attenuation will be less and less and less, पहले से कम होता चला जाएगा, और उस केस में गार्ड बैंड की वैल्यू कम से कम रखनी होगी। गार्ड बैंड की वैल्यू हम कम क्यों रखना चाहते हैं, इसलिए ताकि मेरा जो लिमिटेड फ्रीक्वेंसी मुझे मिली है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मुझे मिला है, उसको गार्ड बैंड में ही केवल हम लोग वेस्ट ना कर दें, बिकॉज बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंडविड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस बैंडविड्थ को कितना इफिशिएंटली, कितना अच्छी तरह से हम यूज करके मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, यही एडवांस वायरलेस, यही वायरलेस कम्युनिकेशन में नई नई टेक्निक्स में रिसर्च की जाती है कि किस तरीके से हम इसको देखें। दो ही रिक्वायरमेंट है, बैंडविड्थ कम से कम यूज हो, डेटा रेट ज्यादा से ज्यादा हो, जबकि बेसिक ये कहता है कि अगर बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो ही डेटा रेट ज्यादा होगा, है ना, because data capacity या data rate is directly proportional to bandwidth, but it is also proportional to the signal to noise ratio. The formula is C is equal to 2B log to the base of 2 1 plus signal to noise ratio. So it depends upon signal to noise ratio also. So we will do something with that. क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये बताना चाहते थे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको हम नंबर ऑफ चैनल्स में डिवाइड करते हैं, जितने नंबर ऑफ चैनल्स में हम डिवाइड करेंगे उतने यूजर्स एक साथ अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्निक कहते हैं। पर ये एफडीएमए में जितने चैनल आप बना रहे हो उसमें जो कॉमन फ्रीक्वेंसी की तरह अगर आप डिवाइड कर दोगे तो वो चैनल्स के डेटा आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। उसको अवॉइड करने के लिए हमें चैनल्स के बीच में गार्ड बैंड छोड़ना चाहिए, और वो गार्ड बैंड कम से कम होना चाहिए। तो ये गार्ड बैंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारा जो रिसीवर साइड पे हमने पहला फिल्टर लगाया है उसके रोल ऑफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। रोल ऑफ फैक्टर सेकंड ऑर्डर या फोर्थ ऑर्डर, जितना ऑर्डर ऑफ द फिल्टर ज्यादा होगा उतना अच्छा रोल ऑफ फैक्टर होगा, और अकॉर्डिंगली हमको उतना कम गार्ड बैंड रख के बिना ओवरलैप के हम डेटा को ट्रांसफर कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको एक बार फिर से समअप करते हैं थोड़ा सा, जो केवल 2 ही स्लाइड हालांकि अभी हुई है, वो उसको समअप करके फिर आगे चलते हैं जो बाद में ज्वाइन किया है जिसने कि what is communication. If everybody asks you, anybody कह रहे हैं, if anybody asks you what is communication, communication is not only to transmit. मैंने बोल दिया और communication हो गया, it's not like that. मैंने बोला, आपने सुना, उसको अपने समझा, अपने डेटाबेस को पढ़ाया, that will be called as a communication. Means just transmission is not a communication. To receive an information, to receive the data will be called as a communication, right? Even there is a difference between data and information also. If you know something, then और वो मैं बताऊं जो आपको पहले से पता है, अगर वही बातें मैं आपको बताऊं तो दिस इज ओनली अ डेटा फॉर यू। बट इफ यू, आपको कोई चीज नहीं पता है और वो आपको मालूम पड़ रही है तो दैट विल बी एन इंफॉर्मेशन फॉर यू, राइट? तो किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जितनी कम होती है वो उतनी ही बड़ी इंफॉर्मेशन, होती है। एज फॉर एग्जाम्पल, if a dog bites a man, it's not an information because it happens, right? If a dog bites a man, it's not an information because it's happened generally. But if a man dog a bite, it will be an information because the probability of this event is very less. So the probability of any event अगर जितनी कम है वो उतनी better information है. So this is the difference between data and information. So basically to transmit वॉइस और डेटा को आपने इसलिए समअप कर दिया कि कोई भी चीज हो, वो वीडियो हो, वो टेक्स्ट हो, वो फाइल हो, एवरीथिंग, या लाइव आप कोई चीज देख रहे हैं, दैट इज ऑल कम अंडर द डेटा। और आज का समय ऐसा है कि हम वॉइस से कहीं ज्यादा डेटा ट्रांसफर करते हैं, कहीं ज्यादा डेटा डाउनलोड करते हैं। तो ऑब्वियसली आज के समय में हमको बैंडविड्थ की ज्यादा जरूरत है और ढेर सारा डेटा हम जल्दी से जल्दी लोड करना चाहते हैं। इट मीन्स देयर इज अ नीड ऑफ स्पीड।
That's why there is a 2G, 2.5G, 3G, 4G, 5G, 6G. Why? Because all these generations of the mobile and wireless communication is there. Just to increase the capacity, just to increase the data rate, right? So basically to transmit and receive the voice and data through free space via using electromagnetic wave is called as an wireless communication, right? And always information is sent over a well-defined frequency band, which is called as a channel. And the bandwidth of the channel determines the capacity of the channel, which is directly proportional to the data rate of the channel, right? So if we divide our frequency spectrum into small channels, small sub channels, then number of users can transfer their data parallelly and independently. For example, in FDMA technique, if I have a 120 Hz kilohertz bandwidth and we are going to divide it into the 40 kilohertz, then there will be 3 channels, right? But if we divide this frequency band like this, then there will be an overlapping of data between the 2 channels. And to avoid the overlapping of the data, we should use a guard band between 2 channels in which there will be no information in guard band. वो हमको छोड़ना है, खाली blank छोड़ना है. So what will be the amount of guard band? Who is going to decide the value of the guard band? It will be by the first filter which is used at the side of the receiver. उसकी डिजाइनिंग डिसाइड करती है कि गार्ड बैंड हमको कितना रखना होगा. Clear? Then there will be type of wireless communication. Sorry. Type of wireless communication is mobile as cellular phones, which is global service mobile, or code division multiple access, or direct sequence spread spectrum, which is CDMA, yeah, voice over LTE, that is GEO, or global service of mobile. Portable is, that is Wi-Fi or ultra wideband, 802.11b, 11. Fixed one is 802.16, which is called as a wireless metropolitan area network. So these are the different type of wireless communication systems and many more, right? These are the typical frequencies which are used in the different type of services. As we know that in the frequency modulation FM radio, the typical frequency is 88 megahertz. That we are using the 92.7, 92.5, 92.8 megahertz something. So they're starting from the 88 megahertz. And for the transmission of television, there is a typical frequency of approximately 200 megahertz. For a global system mobile, that is GSM phones, there will be 900 megahertz. For GPS, 1.2 gigahertz. We should remember these frequencies. What is the value of the typical frequency which is used in this application? Right. So there are number of personal cellular system phones 1.8 gigahertz, Bluetooth 2.4, Wi-Fi 2.4. This is the frequency which is fixed by the which is free given to the by the government, 2.4 and 2.4 gigahertz, which is used in the Bluetooth and Wi-Fi. And so that's why हम लोग जब Bluetooth एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं फोन्स में, तो हमको उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता. कि अगर कोई इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस उसको हॉटस्पॉट ऑन करके नंबर ऑफ डिवाइसेस उस वाईफाई से कनेक्ट करती हैं, तो उस केस में उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता. हालांकि जो इंटरनेट सर्विस है उसका तो देना होगा. इसी तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, सुपर सोनिक हाई फ्रीक्वेंसी एंड एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसी. सो दीज आर द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. और कहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी पे कौन सी सर्विस यूज होती है, जैसे हमारा वो AM रेडियो है 300-500 किलोहर्ट्ज के करीब. देन शॉर्ट वेव रेडियो है ना. FM रेडियो, टीवी एंड टीवी सेल्युलर है 900 मेगाहर्ट्ज. तो टिपिकल हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे लिखी हुई हैं. तो ये जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है यहाँ से, दैट इज 30 किलोहर्ट्ज से लेकर के 1 टेराहर्ट्ज या 300 गीगाहर्ट्ज तक, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर रहे हैं. देन 1 टेराहर्ट्ज के आगे इंफ्रारेड में यूज होता है, या विजिबल अल्ट्रावाइट है, या एक्सरे है, या गामा रे है. तो ये हमारी डिफरेंट प्रोपोगेशंस हैं. और हर फ्रीक्वेंसी बैंड की प्रोपोगेशन कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती हैं. इसी वजह से हम लोग, जैसे कि अब FM है, ठीक है,
तो एफएम रेडियो हम 92.7 मेगाहर्ट्ज पे ट्रांसफर कर रहे हैं, 88 मेगाहर्ट्ज की टिपिकल फ्रीक्वेंसी है, उसको 900 मेगाहर्ट्ज में ट्रांसफर नहीं करेंगे। मोबाइल उसमें है, तो कैसे हम फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हैं? तो इस फ्रीक्वेंसी पे मेरा फ्री स्पेस या वायरलेस चैनल किस तरीके से बिहेव कर रहा है, अकॉर्डिंगली आपने डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए इनेबल हुई है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट के लिए इनेबल हुई है। ठीक है, तो कैसे आप ये है, तो वो हम लोग देखते हैं ट्रांसफर करके कि किस फ्रीक्वेंसी पे इस एप्लीकेशन में हमको सबसे अच्छा डेटा रिसीव हो रहा है, तो उसी फ्रीक्वेंसी पे हम उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 1831 में हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 4 इक्वेशंस मिली थी मैक्सवेल्स की, विच इज used in wireless communication to convert your electrical signal into electromagnetic wave. That is, curl of E is equal to rate of change of magnetic flux density. Curl of H is equal to J plus V dot. Divergence of D is equal to rho. Divergence of D is equal to 0. Right. So these are the some equations which is given by the Maxwell, which is used to generate the foundation of the wireless communication. That how a electrical signal will be converted into electromagnetic wave, which can be easily transferred into free space. क्लियर? कोई चीज, कोई क्वेश्चन हो किसी के उसमें, तो पहले पूछ सकते हैं आप, किसी को भी कुछ। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। इज देयर एनी क्वेरी? नो? No, ma'am. No. Okay. So basically the first thing is ki what is wireless communication, then what type of frequency is used in which type of application, right? Then when electric signal is converted into electromagnetic wave, then these type of equations are used to formulate the equation of electromagnetic wave, which is del square E is equal to gamma square E and del square H is equal to gamma square H. So that is the part of the electromagnetic theory. Now the next thing is why wireless communication? Why wireless communication? The first advantage of wireless communication is freedom from wires, right? Means there is no need to connect your transmitter and receiver via wired. There is no cost of installing wires and rewiring. Means जैसे फॉर एग्जांपल हमको अगर लोकल एरिया नेटवर्क एक 10 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो सबके लिए आपस में कनेक्ट करने के लिए वायर चाहिए और या उसके स्विचेस चाहिए बीच में कनेक्ट करने के लिए. सो देयर इज नो कॉस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टॉलिंग वायर्स और रिवायरिंग, and there is no bunches of wire here and there, right? There is no bunching of wires here and there, and in generally it is something like instantaneous communication without any physical setup, this physical connection setup. Means when you are transmitting, suppose you are transmitting your data via Bluetooth to the friend of your mobile, the mobile of your friend, right? Then there is no required to connect your two mobiles together via using some wire. There is just, you will tap something in the, start your Bluetooth, and then you can transfer your data, right? So it is an instant communication. There is no requirement to set up a physical connection between transmitter and receiver. That's it, as example in the Bluetooth and the Wi-Fi. So this is also called as the auto magical, right? There is no requirement of anything, any wire or any switches or anything. Just you have to tap on your mobile and you will connect it to the mobile of your friend via Bluetooth or Wi-Fi, and you can transfer your data immediately. So that will be the use and the application of the wireless communication. That is the freedom from wires. The second thing is your global coverage. Means the places where we cannot go and wired, that will be communications can reach where wiring is infeasible or wiring is costly, है ना? जैसे रूरल एरिया हो, या if there is a something old building और battlefield और vehicles और outer space, means जहाँ आपका जाना मुश्किल है, वहाँ पर भी हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल कवरेज. मीन्स जहाँ भी चाहे सब जगह अपने डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं. तो दिस इज द यूज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन. ओके, वेरी गुड. ये तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा है ही, यूज ही कर रहे हैं हम लोग इसको.
कि कोई वायर नहीं चाहिए, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं सेट करना है, जस्ट टैप करते हैं डेटा ट्रांसफर हो जाता है। कोई टूट रही बिल्डिंग है, वहाँ पे अगर कोई मोबाइल आप फेंक दें ब्लूटूथ में ऑन करके या वहाँ से कोई डेटा कर ले तो आप, या कोई नोड डिप्लॉय कर दें, डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, फ्रीडम फ्रॉम वायर्स की है, हर जगह पे हम कवरेज कर सकते हैं। तो क्या ये इतना आसान है? क्या क्या चैलेंजेस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो जो चैलेंजेस इज, नंबर वन चैलेंज इज एफिशिएंट हार्डवेयर। तो ट्रांसमीटर हो या रिसीवर हो, दोनों साइड में हम लोगों को अच्छा हार्डवेयर यूज करना होगा। अच्छा हार्डवेयर का मतलब है कि लो पावर ट्रांसमीटर और रिसीवर हो और लो पावर सिग्नल प्रोसेसिंग टूल हो। वनेवर सबसे सिंपल चीज़ है एग्जाम्पल लेने के लिए कि अगर आप एक मोबाइल लेने जा रहे हैं शॉप के ऊपर, नया मोबाइल ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो देखते ही हैं कि क्या प्राइस है उसका, उसके साथ साथ क्या उसके फीचर्स हैं उसको भी हम देखते हैं। उसमें से एक फीचर होता है कि मोबाइल में लिखा होता है बॉक्स के ऊपर कि इसका स्टैंड बाई टाइम क्या है और इसका टॉक टाइम क्या है। तो टॉक टाइम का मतलब है कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन लगाया और आप कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं तो कितने घंटों के बाद वो मोबाइल फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। या दूसरा ये है कि अगर आपने मोबाइल को ऑन किया और छोड़ दिया, आपने कोई बात नहीं करी और ये देख रहे हैं कि कितने टाइम के बाद इसकी बैटरी अपने आप फिनिश अप हो जाएगी, उसे हम स्टैंड बाय टाइम कहते हैं। तो इन जनरल स्टैंड बाय टाइम और टॉक टाइम जो है ये डिपेंड करता है कि आपने जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं अपने मोबाइल के ऊपर, वो कितना लो पावर कंज्यूम करती है डेटा को ट्रांसफ़र करने में। जितना लो पावर कंज्यूम करेगी उतना ज़्यादा बैटरी आपकी चलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बैटलफील्ड है, तो आपने नोड्स बनाए, बर्कले नोड्स होते हैं मोबाइल की तरह ही, उसमें प्रोसेसर है, मेमोरी है, कैमरा है, एवरीथिंग इज देयर इन द बर्कले मोड, छोटे छोटे बने होते हैं। उन नोट्स को हम कहीं पर भी जा करके बड़े वो होते हैं, मतलब वेयर एंड टेयर जल्दी नहीं होता उसमें, जल्दी टूटते फूटते नहीं है, बड़े सॉलिड होते हैं। तो उनको आपने कहीं ऊपर से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, थोड़ी थोड़ी दूरी पे जा करके प्लेन से ड्रॉप कर दिया। तो अब वो जो नोट आपने ड्रॉप किए जिस जिस लोकेशन में, उनके बीच में आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करवा सकते हैं कहीं बहुत दूर बैठ करके। वहाँ पे क्या वेदर की कंडीशंस हैं, वहाँ पे कोई हमारा जो एनिमी है, एनिमी कंट्री है, उसकी तो कोई गतिविधि नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बहुत दूर बैठ करके उसमें मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम में क्या है? प्रॉब्लम यही है कि या तो वो उसमें ऐसी बैटरी लगी हो जो सोलर पे वर्क करती हो, ताकि वो सन से अपने आप को चार्ज करके आपको बराबर डेटा बहुत समय तक देता रहे। और अगर वहाँ पे सपोज ऐसा एरिया है जहाँ पे सन बहुत कम निकलता है या उससे चार्जिंग नहीं हो पाती, या बहुत ही आपका ठंडा जगह है, नहीं इस तरीके से चार्जिंग, तो जो बैटरी आपने उसमें डिप्लॉय की है वो जितने ज़्यादा समय तक लास्ट करेगी उतने ज़्यादा समय तक वो आपको डेटा देगी, है ना। तो अगर लो पावर ट्रांसमीटर और रिसीवर हम लेते हैं और जो भी उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा कैप्चर करना, वीडियो कैप्चर करना, या वहाँ की सेंसर के थ्रू वहाँ के कुछ पैरामीटर्स को मॉनिटर करना, फिर उन पैरामीटर्स की वैल्यू को आप तक भेजना, अगर इन सब कामों में प्रोसेसिंग हमारी जो भी हो रही है वो लो पावर पे हो जाए तो वो नोट्स ज़्यादा समय तक हमको वहाँ का डेटा दे सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ एफिशिएंट हार्डवेयर। द नेक्स्ट थिंग इज कि हर सर्विस प्रोवाइडर को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ही मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट सबको एलोकेट करती है। ट्राई जो हमारा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करता है, जैसे हमारा हुआ था ना स्पेक्ट्रम 2G 3G 4G में जब स्पेक्ट्रम डिवाइड किए गए, वो क्या कहते हैं, बोली लगती है, उसको देते हैं, उसमें टेंडर पड़ते हैं। तो बेसिकली हर एक के पास में अपना एक फाइनाइट रेडियो स्पेक्ट्रम है, और उस फाइनाइट रेडियो स्पेक्ट्रम को हमको इस तरीके से यूज करना है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, और ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें कि अच्छी सर्विस हो, ज़्यादा डेटा रेट पे वो डेटा को ट्रांसफर कर सकें। बार बार कॉल मिलाएं और कॉल ड्रॉप हो गई, या कॉल आपकी मिल नहीं रही है, या आपने फ़ोन किया और फ़ोन पे किसी दूसरे की आवाज़ आ रही है, या हम कोई इंटरनेट सर्विस यूज़ कर रहे हैं और बार बार हम उसको करते हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा है, डेटा स्पीड बहुत कम मिलती है। क्या करोगे आप? 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आप अपने सर्विस प्रोवाइडर को बदल दोगे, है ना, क्योंकि हमारा काम उसमें से नहीं चल रहा है। तो इन जनरल हमको एफिशिएंट यूज ऑफ फाइनाइट रेडियो स्पेक्ट्रम तो करना ही है, पर ये नहीं है कि फाइनाइट रेडियो स्पेक्ट्रम को यूज करने के चक्कर में हम क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर ले जाए। तो देयर शुड बी दोनों के बीच में एक तालमेल हम लोगों को रख के चलना पड़ेगा। तो जो वो कुछ ऐसी टेक्निक्स लगानी होंगी जिससे हम फाइनाइट रेडियो स्पेक्ट्रम को मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स के लिए यूज कर सकें।
उसकी जो टेक्निक है वही है मीडियम एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं कि वो कैसे हम मोर देन वन यूजर कैन ट्रांसमिट देयर डेटा ऑन अ सिंगल चैनल, दिस इज कॉल्ड एज अ मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MAC, राइट। When more than one user transmit their data efficiently on a single channel, it will be called as a media access, right? And how to do this? That is done by a certain type of rules and regulation, and that will be called as a medium access control protocols, right? Yeah, in GSM, that frequency is used by the many users. That particular frequency is used by number of users, right? But that user should be far away from the user which is also using this frequency. तो फ्रीक्वेंसी रीयूज का मतलब क्या है कि अगर मैं F1 फ्रीक्वेंसी पे डेटा ट्रांसफर में हम कर रहे हैं तो मेरे आसपास कम से कम 100 लोग होंगे जो 10 उसी फ्रीक्वेंसी पे अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होंगे, लेकिन हमको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा कि कम से कम इंटरफेरेंस हो दोनों के बीच, कम से कम दोनों के बीच में इंटरफेरेंस हो। हालांकि वो फ्रीक्वेंसी केवल हम ही यूज नहीं कर रहे, मेरे जैसे बहुत सारे यूजर्स उसी फ्रीक्वेंसी रीयूज means to use that frequency again and again after a certain distance is called as a frequency reuse. Clear? To use the same frequency, to use the same frequency again and again after a certain distance is called as a cellular frequency reuse, which is used in GSM technique. And there are number of media access control protocols which is used to design, which is designed to use the radio spectrum efficiently. Clear? So this is the challenge कि हम कैसे अपने फाइनाइट रेडियो स्पेक्ट्रम को ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकें बिना क्या कहना चाहिए, बिना क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ में कॉम्प्रोमाइज किए, राइट। देन द नेक्स्ट चैलेंज इज टू इंटीग्रेट द सर्विसेज, मतलब वॉइस हो, डेटा हो, मल्टीमीडिया हो या कोई भी तरीके की सर्विस हो, वो सब हम एक ही नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर कर सकें। जैसे स्मार्टफोन जब हम यूज कर रहे हैं 3G 4G में, तो इफ यू वांट टू talk to someone, then you can use it. If you want to transmit video or voice to via the platform of WhatsApp or Instagram or Facebook, then you can do it. There is a multimedia support. So integrated services means many type of services should be performed on a single network, on a single platform. This is also the challenge of a wireless communication, right? And there should be service differentiation ये जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी को भेजते हैं तो वो व्हाट्सएप पे ही ओपन होता है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सर्विस डिफरेंशिएशन। या अगर किसी डेटा को ट्रांसफर करना है प्रायोरिटी वाइज, या एक ही रिसोर्स को, जैसे एक प्रिंटर लगा रखा है और 10 कंप्यूटर्स हैं, हम चाहते हैं 10 में से कोई भी अपनी फाइल को उसी प्रिंटर से प्रिंट कर सके, दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स शेयरिंग। So basically number of integrated services should be performed on a single network. We can transmit voice, data and multimedia over a single network, that will be called as integrated services, right? Then there should be differentiation between the different type of platforms. There should be a priority difference of resource sharing. This will be also a challenge. To do it on a single network is also a challenge in wireless communication, right? Clear? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए पहले। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एफिशिएंट हार्डवेयर, देयर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस आर देयर, राइट? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं? सतीश? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। राइट। तो इन जनरल अभी हम लोग यहाँ पर आज क्लास में ये देख रहे थे कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन वायरलेस